Jai Hind everyone and welcome to our first video of Mavericks Group. So today we are going to discuss that how to get screened in SSB. As you all are aware of the procedure that Services Selection Board interview includes of two-stage testing, out of which first stage is your screening testing and it includes multiple tasks. So we are going to talk about that how to prepare for screening and how to perform while you are going for the SSB in the screening process. So my name is Sachin Jangir and I have given 6 times SSB and out of which I earned my recommendation in the sixth attempt. Okay, so let us now cut the chase and start with the task in stage 1 testing. So the first task is OIR test, which stands for Officers Intelligence Rating Test. And the second task is PPNDT, which stands for Picture Perception and Discussion Test. So we are going to discuss both these tests in detail and step by step. So first of all, talking about OIR, this test includes two sets of 50 questions each, and these OIR sets are designed by Defense Institute of Psychological Research. When I say that these sets are designed by DIPR, it means that these are the questions which were made at a particular point of time, and these sets of questions are being repeated in all the SSB boards, whether they are of Air Force, Army, or Navy. So these questions are of very much repetitive form. So we can prepare ourselves accordingly. The time given for each of these set is decided by the board as per the DIPR set, and which DIPR set is being given at that particular SSB is decided by the senior psychologist, and the time given is also decided by the board at, at that point. It is usually 17, 22, 25, 30 minutes. So you need not to be surprised over there. So I will recommend you to practice within 18 or 20 minutes of time frame to practice the same level of difficulty, same difficulty level of questions. And as you can see, the catch here is the speed. So you need to practice similar difficulty level questions under 18 minutes. And for that, same difficulty level questions, I have provided you one PDF in which there are multiple questions. There are like 50 plus pages of questions, and these questions are of same level as per DIPR, and some of those questions are also directly from DIPR. Like some friends have told after coming from their SSB, and they have made a compiled a PDF of questions. So from there you can have the idea that which kind of questions will be coming in front of you in the officer's intelligence rating test. When you are giving such kind of sets and such kind of 50 questions wale set, so the good score is around 45 to 50. So you need to score about 45 plus in under 20 or 18 minutes. That's a good time, and that shows that you are having good preparation for the OIR. Remember, there is no negative marking in the officer's intelligence rating test. So answer every questions. अगर टाइम बचे तो आप तुक्के भी लगा सकते हो. इसका मतलब यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट OIR. Now we are going to proceed with our second task, that is PPNDT, Picture Perception and Discussion Test. This includes this task includes three parts. First, the writing of a story writing. Second, narration of the story to the group. Third, the discussion with the group to come upon a common story. So I'll be talking about all of these steps in detail. सो अभी ऑफलाइन बात कर लेते हैं थोड़ा कि होता क्या है ऑन ग्राउंड. व्हेन फर्स्ट डे यू हैव रिपोर्टेड, आफ्टर योर OIR इज डन, देन you will be your PPNDT टास्क विल बी इमीडिएटली स्टार्टेड. उसके पहले आपको साइकोलॉजिस्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे क्लियर फॉर्म में, और आपको पूरे टास्क के बारे में बताया जाएगा. तो आई एडवाइज यू टू हियर दोज इंस्ट्रक्शंस very much attentively.
So let us now talk about what is PPNDT. सो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे वो कुछ कुछ इस प्रकार से होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ. बिफोर दैट यू विल बी हैविंग अ पीपी एंड डी टी शीट जिस पे आपको अपना नाम, चेस्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एज लिखनी होती है. ठीक है. और उसी सीट पर एक लेफ्ट टॉप साइड में एक स्क्वायर बॉक्स होता है और उस स्क्वायर बॉक्स को आपको मानना है कि वो जो आपके सामने जो प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन है वो है. और उसके राइट साइड में एक्शन लिखा हुआ होता है और उसके नीचे दोनों चीज़ों स्क्वायर बॉक्स के नीचे लिखा हुआ होता है स्टोरी, जहाँ पे आपको अपनी स्टोरी लिखनी है. आपको आगे और समझ में आ रहा होगा कि वो बॉक्स किस लिए दिया गया है. लेट मी गिव यू दोज इंस्ट्रक्शंस. Ladies and gentlemen, it's a test of your observation, perception, and imagination. In this test, you have to write a story, bringing out what led to the situation, what is going on, and what the outcome will be. You also have to mention the gender, age, mood, and thoughts of the character while writing the story. Now, a picture will be shown to you for 30 seconds, and then you will be given 1 minute to mark the number of characters, their gender, age, and their respective mood. You have got to encircle the character first seen by you, and you also have to write the action of your story in the given minute. And then you will be given 4 minutes to write your story. You can also use the rear part of your sheet if the given space is insufficient for you. So these kind of instructions will be given to you in the SSB. So let us now talk about the all three parts of PP and DT in very much detail. So as told in the instructions, first you will be shown a picture for 30 seconds to observe the picture. And here you need to understand one thing, that 30 seconds given is not an arbitrary time period. It is for a psychological reason. So you need to observe the picture very much carefully. You need to see the number of characters, their body language, their attire, and their background too. When you are observing this picture, I will advise you not to think much and not to stress your brain to think of an idea to come upon a story. Just observe the picture. When you will be observing the picture for complete time period and without any stress, then naturally there will be ideas flowing to your mind. And then, as in the instructions given, then you will be given 1 minute to mark the characters and writing action of your story. Here, when we are talking about PP and DT ka time, it is in total 30 seconds for the observation, 1 minute to mark these characters, and 4 minutes to write your story. So 5 minutes 30 seconds is a good enough time. So तो आपको रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है. We have to utilize our given time very much wisely. In this time, when you will be given 1 minute to mark the characters and writing action of a story, in this time, first mark the characters in the square box given left under the seat. Then plot the story structure in your brain and structure the story completely in the brain. Now, then, after structuring a story, encircle the main character and write the action of your story. In case you have not prepared the whole story mentally yet, you can also take some time in the 4 minutes slot to give your story a finishing touch. Because ऐसा होता है कई बार कि हम स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिए पर हमारे दिमाग में ही क्लियर नहीं है कि हम लिखेंगे क्या. तो हमने कैरेक्टर्स को कुछ मार्क कर दिया, एक्शन कुछ लिख दिया, स्टोरी कुछ लिख दी. So that these all three things are not aligning with each other properly. Hence, it will be kind of a hodgepodge, not a proper story. So you need to be calm and utilize your given time very much efficiently. And trust me, it is enough time to write your story. So you need not to rush. You just have to be present at the moment. और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. Then, when you will be given 4 minutes to write your story neatly. एंड ऑल्सो डू नॉट वेट. अगर आपने 30 सेकेंड पिक्चर को ऑब्जर्व किया, 1 मिनट में अपने कैरेक्टर्स मार्क किए, एक्शन भी लिख दिया, अब वेट मत करो. अगर आपकी स्टोरी मेंटली प्रिपेयर हो गई तो वेट मत करो कि 4 मिनट 1 मिनट के बाद में
बाद में ही मैं अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट करूंगा। आप जिस टाइम पे भी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, दैट्स नो प्रॉब्लम। तो ये बात हुई आपके स्टोरी लिखने की। एंड if you might be wondering that how good story we can make, how can we make a good story? So for that also I have provided you the notes for the art of storytelling, or sorry, the art of story writing, in the description of this video. You can check out those notes. And also we'll be coming up with our next video in which we'll be talking about TAT, thematic apperception test, and as well as how to write good story and how to prepare for writing good stories, and how we can have good ideas and more relatable and more action based story. Okay, so for that we'll be talking in a separate video. So let us now proceed with our next procedure, that is the narration of the story to the group. अब देखो, जब आपने स्टोरी लिखना फिनिश किया और टाइम्स अप हुआ, तो यू विल बी इंस्ट्रक्टेड टू फोल्ड योर पीपीडीटी शीट इन हाफ। मतलब बीच में से मोड़ के आपको स्टोरी की सीट अपने पास ही रखनी है, और फिर आपको होल से बाहर ले जाया जाएगा। हो सकता है इन सम केस यू विल बी गिवन हाफ एन आवर टाइम बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन हॉल। और इवन हमारे केस में जो AFS भी देहरादून जहाँ से रिकमेंड हुआ था, उस केस में हमें हॉल से निकाल कर और डायरेक्ट डिस्कशन हॉल में ले जाया गया था, बट रास्ते में हमें अराउंड 5 to 6 मिनट्स मिले थे, ठीक है। तो when you are walking, or even when you are having some time, then I will advise you to prepare your narration before entering the hall. आप अपना नरेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और अपना नरेशन अपने आप को ही खुद को नरेट करके दिखा सकते हैं लाउडली, और इतनी वॉइस में कि और किसी को आपकी स्टोरी ना पता लगे, और आप अपना नरेशन नरेट भी कर पाए खुद से, और आपकी टंग हैबिचुअल हो पाए, तो उससे आपको आपके नरेशन में हेल्प हो रही होगी। You can narrate your story to yourself, or even to a tree if you are standing and having some time. तो उससे क्या होगा कि आपकी स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, और आपकी टंग भी हैबिचुअल हो चुकी, ठीक है। और आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना भी आपको टाइम मिले, और आई विल एडवाइस यू टू, एंड आई विल फोर्स यू टू एटलीस्ट प्रिपेयर योर नरेशन और प्रैक्टिस योर नरेशन प्रॉपरली एटलीस्ट 3 times, ओके। और मैक्सिमम आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कितने भी बार प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स जब आपको डिस्कशन हॉल में जाना है, ठीक है, तो आई विल एडवाइस यू टू लिव इन द मोमेंट। आपके स्टोरी की प्रैक्टिस हो चुकी, आपने प्रिपेयर कर चुके, तो आप ज़्यादा सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोमेंट में जिए, अपना प्रेजेंट में जिए, और फिलहाल जो आपको काम करना है, आपको जैसे चल के जाना है तो आपको चलने पे फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मैं आज स्क्रीन इन होऊंगा या नहीं, या फिर मेरी स्टोरी कितनी अच्छी है कितनी खराब है। रिमेंबर, इन SSB नेवर असेस योर सेल्फ। देर आर असेसर्स जिनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है आपको असेस करने के लिए, तो आपको खुद को असेस करने की ज़रूरत है नहीं। आप अपना काम करते रहिए। जब भी आप टाइम मिले, जैसे जब भी आपको टाइम मिला, आपने अपनी स्टोरी नरेट कर ली, खुद से प्रैक्टिस कर ली, आप डिस्कशन हॉल में जा रहे हो, तो आप उसी पे फोकस करिए, चलने पे फोकस करिए, देखने पे फोकस करिए, सांस लेने पे फोकस कीजिए। डिस्कशन हॉल में अंदर एंटर कर रहे हो तो इधर उधर देखिए, स्माइल कीजिए, है ना। और इवन अगर आप वॉक भी कर रहे हो, आपने नरेशन अपना प्रैक्टिस कर लिया, तो आगे पीछे लोगों से देखिए, उनकी एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करिए, है ना। तो देखिए, सभी नर्वस और एंग्जाइटी होती है सबको, इट्स नॉर्मल, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके। सो बी ए सेंट आफ्टर एंटरिंग द होल, ओके। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप हॉल में जाने से पहले, अगर आपके पास आपको मौका मिला पानी पीने का, तो आप गर्म पानी पी सकते हैं, उससे आपका गला और अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अभी आप डिस्कशन हॉल में एंटर कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट चेस्ट नंबर वाइज आप सब बैठोगे, ठीक है। देर विल बी ए सेमी सर्कुलर वे में, जहाँ पर आपकी चेयर लगी हुई होंगी, और वो सेमी सर्कल फेस कर रहा होगा 3 SSS को। उन 3 SSR में होते हैं आपके साइकोलॉजिस्ट एंड द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स, which will be giving instructions to you for the task, and third, the interviewing officer. So
after getting your chairs seated, after you have get your seat, तो उसके बाद में जब जीटीओ सर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे तो आपको अच्छे से सारी इंस्ट्रक्शंस को सुनना है और समझना है। और आपको मैंने बताया जैसे कि आप संत हो तो आप सिर्फ सुन रहे हो तो सिर्फ सुन रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरी स्टोरी कैसे क्या है। मैं बार बार इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ना हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और हम खुद को ही असेस करने में खुद को ही डिमोरलाइज करने लगते हैं कि मेरी स्टोरी अच्छी नहीं है या फिर मैं तो घबरा जाऊंगा, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस आपको सुनाए जा रहे हो आप नोट कीजिए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, उनको अच्छे से रिसीव कीजिए, समझिए, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर आपके ग्रुप का पहला मेंबर अपनी स्टोरी नरेट करने को स्टार्ट करे, तो आई विल एडवाइस यू टू हियर, टू गिव योर कंप्लीट अटेंशन टू हिज स्टोरी। After you are also having your positive body language, you are receiving his story well, you are making eye contact to him, the person who is narrating her story, uh, his story। तो उससे क्या होगा, पहली बात तो आप सबकी नरेशन, सबकी सारे ग्रुप की स्टोरी सुन पाएंगे, ठीक है। और जब आप उनकी स्टोरीज सुनेंगे, आप व्हेन यू विल हीड योर अटेंशन टुवर्ड्स देमसेल्व्स, देन दे विल ऑल्सो नोटिस दैट दिस पर्सन वाज लिसनिंग टू मी, है ना। दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। So having a positive body language in the whole is very much necessary, and also you are indulging your attention, your complete attention into the listening part of others story, so you will be also not worried। बेकार में आप वरी नहीं करोगे। अगर आप उनकी स्टोरी पे अटेंशन अपना डाले रखोगे तो आपको ज़्यादा एंजाइटी या नर्वसनेस भी नहीं होगी। जब आपका टर्न आए नरेट करने का, तो आपने सबकी स्टोरी सुन ली। जब आपका स्टोरी नरेट करने का टाइम आए तो आप बिल्कुल कामनेस के साथ, कन्विक्शन दैट इज बिलीफ के साथ और ना कूल तरीके में सबके साथ, ग्रुप के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए अपनी स्टोरी नरेट कीजिए। जब आप बोल रहे हैं कि मान लो आपकी स्टोरी में आपने लिखा है कि आप आग में कूद गए और लोगों को बचा रहे हैं, तो जब आप ये चीज़ें अपनी स्टोरी में आप ग्रुप को नरेट कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव कन्विक्शन इन योर वॉइस कि अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं तो ग्राउंड पे करेंगे भी। जब यार आपको ये चीज़ बोलते हुए ग्रुप पे आप हिचकिचा रहे हैं तो आप वो ग्राउंड पे कैसे ही करोगे। तो यू नीड टू हैव कन्विक्शन इन योर वॉइस और अपनी स्टोरी पे बिलीफ के साथ पॉजिटिवली सबको सबके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए आपको स्टोरी नरेट करनी है। आफ्टर फिनिशिंग योर नरेशन आप सबको थैंक यू बोलिए, और अगर अगर आपसे नेक्स्ट पर्सन है तो आप उसकी स्टोरी फिर से सुनना स्टार्ट कीजिए। आई टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू अदर स्टोरी वेल। एक तो मैंने बताया कि आपकी अटेंशन पूरी इंडल्ज हो आप उनकी स्टोरी सुनने में, प्लस आई विल बी कवरिंग अनदर pro another benefit of this to in the discussion part it will be also helping you। Now I'm going to tell you the way in which you can narrate your story। So there are some general lines you can also produce from yourself and create from yourself also, but there are a general line which I used and you can also use, that is यू कैन ग्रीट एवरी वन इफ इट इज़ नॉट इंस्ट्रक्टेड कि आपको ग्रीटिंग्स नहीं करनी है। अगर जीटीओ सर ने बोल दिया तो आपको ग्रीटिंग्स नहीं करनी है। आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हो जेंटलमैन से, या फिर अगर आपको ऐसे ग्रीट नहीं, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस में ऐसा कुछ स्पेशली नहीं बोला गया है तो आप ग्रीट भी कर सकते हो। लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई हैव परसीव्ड these many characters in this age group and of this mood। The action of my story is this, and then you can start your story narration, and thereafter you can end your narration of your story with a thank you। Okay, so after finishing you can have you can give your narration this way। So नरेशन करने के बाद में सबका नरेशन हो जाएगा। जैसे मान लो आपके ग्रुप में 15 मेंबर हैं
तो चेस्ट नंबर 1 से चेस्ट नंबर 15 का सबका नरेशन हो गया, तो इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट डिस्कशन, है ना। एंड फॉर दैट डिस्कशन इज ए ग्रुप डिस्कशन टू कम अपॉन ए कॉमन स्टोरी। जो आपको स्टोरी दिखाई गई थी उस पे आपने अपनी कहानी सुनाई दूसरों को, सबकी कहानी आपने सुनी। अब पूरा ग्रुप एक साथ बोलेगा और डिस्कस करेगा और एक कॉमन स्टोरी बनाएगा जो पिक्चर तुम्हें दिखाई गई थी। वो कॉमन स्टोरी आपके डिस्कशन से बननी चाहिए, पूरे ग्रुप के कंट्रीब्यूशन से बननी चाहिए। हम यहाँ पर एक चीज भूल जाते हैं, दैट इट इज ए ग्रुप टास्क। हमें लगता है ये तो हमारा ही टास्क है, इसमें तो हमें अपनी स्टोरी ही बेचनी है, हमें अपनी स्टोरी ही अपनी स्टोरी को ही के साथ ही कन्विंस कराना है पूरे ग्रुप को। नहीं, आप एक ग्रुप हो, आप कोई कंपटीशन में नहीं हो, आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो। पूरे ग्रुप, पूरे 15 मेंबर का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि एक कॉमन स्टोरी बनाना, डिस्कशन से, कोऑपरेशन से। ठीक है, वो कोई कंपटीशन नहीं है कि आप 1 वर्सेस 14 है, नो, इट इज 15, पूरे 15 का टास्क है कि एक कॉमन स्टोरी बनानी है। तो सबका साथ, सबका विकास करते हुए आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे सकते हो। जब देखो डिस्कशन स्टार्ट होते हैं तो एसएसबी में यार हर कोई जाता है रिकमेंडेशन लेने, हर कोई जाता है परफॉर्म करने, तो सब बोलेंगे इट्स नोबल एंड इट्स ओके दैट सब बोलेंगे, तो आप भी बोलिए। बट अगर आप देख रहे हैं कि सब ही बोल रहे हैं और आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो शर्माइएगा नहीं चुप होने में, है ना। क्योंकि अगर सब चिल्ला रहे हैं और आप भी चिल्ला रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि हमारा देखो बोलने का उद्देश्य क्या होता है, हम बोलते हैं ताकि लोग हमें सुने। जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो बोलने से क्या फायदा। सो इट्स ओके कि आप विथड्रॉ कीजिए और सबकी बातों को सुनिए, फिर आप उनके साथ एग्री कीजिए, और या फिर आप उनको कंप्लीटली एग्री नहीं करते तो आप उनको फिर आगे कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं पोलाइटली और हम्बलनेस के साथ। ये तो हुआ पहला केस कि वो आपके बोलने कि सब बोल रहे हैं, सब स्टार्टिंग में चिल्ला रहे हैं तो आप चुप रह गए, फिर आपने अपनी बात थोड़ी बाद में रख दी। नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो। इन अ केस कि आप स्टार्टिंग में बोल रहे हैं और फिर लोगों ने आपकी बात सुनना स्टार्ट कर दिया, तो वो केस भी आपके लिए अच्छा है। इसमें आपको पहले, मतलब डिस्कशन इज फर्स्ट लिसनिंग, थिंकिंग एंड देन स्पीकिंग। एंड फॉर द स्टार्ट, अब जब आपकी बात सब सुन रहे हैं तो आपका लिसनिंग पार्ट रेफर करते हैं जो बाकियों ने स्टोरी नरेट की उससे। तो आप उस स्टोरी के साथ जाएं जो कि बेस्ट रिलेट कर रही हो पिक्चर के साथ, और जरूरी नहीं वो आपकी स्टोरी हो, वो किसी और की भी हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी अच्छी है तो वो आपकी स्टोरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप अपना आइडिया प्रपोज कर सकते हैं, जेंटलमैन, दैट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द कॉमन थीम ऑफ अवर स्टोरी, डू यू एग्री। ये होता है डिस्कशन। आपने एक ओपन एंड से अपना पॉइंट खत्म किया है, फिर लोग आपको रिएक्ट करेंगे डिस्कशन में। फिर आप एक एसेट हो, आप डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हो, आप डिस्कशन को वहीं खींच नहीं रहे या फिर वहीं लटका नहीं रहे। तो आप ये कर सकते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्ट फर्स्ट, सस्टेन वॉइस टू बी हर्ड, एंड व्हेन योर वॉइस इज हर्ड मेक श्योर टू गिव लॉजिकल एंड कन्विंसिंग पॉइंट टू गो अहेड विद द स्टोरी और सम बेटर स्टोरी। जब आप स्टार्ट करें तो आपको लाउड होना जरूरी नहीं है ना, सॉरी, आपको शाउट करना जरूरी नहीं है, आपको अपनी वॉइस लाउड रखनी है ताकि सुने। और आपकी वॉइस इतनी ही लाउड होनी चाहिए कि आप बोल भी पाए, इतना लाउड नहीं कि बस एक बार आपने एक सेंटेंस भी बोल दिया तो फिर आपका गला गया। तो आपको अपनी वॉइस को सस्टेन करके रखना है, और जब आपकी वॉइस सुनी जाएगी तो आपको अच्छा पॉइंट देना है और ग्रुप के साथ कोऑपरेट करते हुए विद द बेस्ट स्टोरी आगे बढ़ना है। ठीक है। And when I told you that discussion is listening, thinking and then speaking, तो हमें समझना है कि हमने लिसन भी करना है,
फिर उस पर एक अच्छा पॉइंट दिमाग में कंस्ट्रक्ट करके फिर बोलना है और फिर वापस चुप भी होना है, ठीक है। क्या होता है कई बार हमें मौका मिलता है तो हम लगे रहते हैं 1-2 मिनट के लिए बोलते जाएंगे, नहीं, हमें अपना पॉइंट शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है जिससे ग्रुप भी हमारा पॉइंट अच्छे से अटेंटिवली सुने, ठीक है। सो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आपने अपना पॉइंट दिया, आपने डिस्कशन से विथड्रॉ किया, फिर आप दूसरे के पॉइंट सुन रहे हो, तो you have to continuously contribute in the discussion with constructive points to reach the objective of the discussion, that is to reach to a common story with a via discussion. तो आपको डिस्कशन में कंटिन्यूसली जब भी अच्छे पॉइंट्स आ रहे हो तो डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करना है, अच्छे पॉइंट्स देने हैं जिससे आपका जो ग्रुप है उसका ऑब्जेक्टिव है। देखो आर्मी में या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस में जो ऑब्जेक्टिव है ग्रुप का या फिर आपके देश का वो सुप्रीम है, वो आपके मतलब इट इज़ नॉट दिस दैट जब आपका काम था जो इंडिविजुअल नरेशन में वो तो आपने कर दिया, अब पूरे ग्रुप का काम है ना स्टोरी तक पहुंचना। तो आप ये मत देखिए कि मैं मेरी परफॉर्मेंस चमकाऊं, आप ये सोचिए कि ग्रुप आगे कैसे बढ़ेगा और उस हिसाब से आप अपने आगे पॉइंट्स दे सकते हैं। मैं मानता हूँ अपॉर्चुनिटी कम मिलती है डिस्कशन में, बट आप पेशेंस के साथ और अगर आप पेशेंस के साथ दूसरे के सुनेंगे तो आपको पॉइंट्स अच्छे भी आएंगे, और जब आप दूसरे को सुनेंगे तो वो भी आपको सुनेंगे जरूर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। देखो समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, हरदम ऐसा नहीं होगा कि ऑकवर्ड साइलेंस बन जाएगी और आप अपना पॉइंट दे पाएंगे। हम नहीं हाथ पे हाथ रख के वेट कर सकते अपॉर्चुनिटी मिलने का और ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट होने का। सो फॉर दैट वी कैन प्रेडिक्ट कि कब लोग चुप होने वाले हैं। जैसे एक बंदा मान लो एक चेस नंबर 4 बोल रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि उसने अपना पॉइंट कंप्लीट कर दिया, वो चुप होने वाले हैं। तो जिस टाइम पे आप बोल सकते हो यस आई एग्री या फिर यस आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट ओवर हियर, तो ऐसे करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ग्रुप का अटेंशन वहां से आप अपनी तरफ ला सकते हो और आप अपना पॉइंट दे सकते हो। सो सीक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, फाइंड द पॉजेज ऑफ ऑकवर्ड साइलेंस, एंड व्हेन एवरी candidate is finding one, you have got to predict one such pose and speak before that. Okay, and I'm also not saying here कि आपको इंटरप्ट करना है किसी और को, बस आपको लगता है कि इस बंदे ने अपना पॉइंट दे चुका तो अब मैं बोल सकता हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोल सकते हो। अब ऐसा भी होता है कि कई बार ग्रुप पूरा ही चिल्ला रहे हैं, सुनने को तैयार ही नहीं है, तो आप पूरे ग्रुप को समझा सकते हो, जेंटलमैन लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम, वी इट्स अवर ग्रुप ऑब्जेक्टिव टू रीच टू अ कॉमन स्टोरी, सो लेट अस स्पीक वन बाय वन, and you can also ask for the opportunity by speaking affirmatively. By affirmatively I mean that if like say chess number 9 is speaking continuously, then we can say that please chess number 9 you have spoken enough times, let me speak. और अगर आपने भी अच्छे से बोल लिया है और आप और किसी को मौका देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पीपीडी के डिस्कशन में इतना टाइम नहीं मिलता, तो इट्स ओके दैट आप अच्छे पॉइंट्स ऐड करें किसी और को शट अप कॉल देके, अगर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिवली और अपने पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी वॉइस वॉल्यूम के साथ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वाइल गिविंग शट अप कॉल ऑल्सो यू नीड टू बी पोलाइट एंड बी अफर्मेटिव कि आपने दैट चेस नंबर 9 यू हैव स्पोकन एनफ टाइम्स, नाउ लेट मी स्पीक, है ना। ओके, so when the group have made intro actions of the story, give a good detailed points that includes the way to conclude the story. Before this point I would like to add one thing. जब ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो डिस्कशन हो रहा है और कॉमन थीम वो डिसाइड हो रही है जो आपकी स्टोरी नहीं है, तो आप उनके साथ एग्री कर सकते हो और फिर आप उनके साथ काम करिए, उस जो थीम पर और एक्शंस डालने की कोशिश कीजिए, और आप और एक्शंस डाल पाएंगे। क्यों 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 बिकॉज आपने सबका जो 14 मेंबर हैं अलग ग्रुप के, उनके सबकी स्टोरी का नरेशन आपने अच्छे से सुना है, और कॉमन थीम तो वहीं आपकी 15 स्टोरी में से कोई ना कोई बनेगी, तो
तो आपको एक्शंस पहले से पता होंगे और आप और एक्शंस भी डाल सकते हो उसमें। तो वो दिखाएगा कि आप एक ग्रुप में एक एसेट हो और ग्रुप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और जब ये सब स्टोरी एक्शंस डाल चुके हो और लगे कि भाई अब एक्शंस हो चुके प्रॉपर, तो आप आगे डिटेल्ड वे में थोड़ी सी ग्रुप की कॉमन कंक्लूजन भी दे सकते हो और ग्रुप थोड़ी स्टोरी वापस से रिवाइज करवा सकते हो 2-3 पॉइंट में। तो उससे लगेगा कि ये बंदे ने या फिर इस कैंडिडेट ने पूरी स्टोरी सुनी है, पूरा डिस्कशन में अच्छे से सुना है और इसे पूरी स्टोरी पता है कि जो कॉमन डिस्कशन से जो स्टोरी आप बना रहे हो वो इस कैंडिडेट को पता है। तो दैट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी कि आपको कॉमन नरेटर की तरह नॉमिनेट किया जाएगा। दो दैट इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव, our objective of the group is to bring our group towards our objective, that is to make a common story from of the projected picture. अब एक और क्वेश्चन आता है कैंडिडेट्स का कि फॉर हाउ मेनी टाइम्स शुड वी स्पीक इन पीपीटी डिस्कशन सो दैट आवर कंट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड गुड इनफ। तो देखो, फॉर गुड इनफ कंट्रीब्यूशन आपको ज़्यादा बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट जितनी भी बार आप बोलिएगा, जितनी भी बार आप बोल रहे हैं, आप अपने टाइम या अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दूसरों की अटेंशन ले रहे हैं, तो उसको आप यूटिलाइज करके और ग्रुप को आगे कैसे बढ़ाते हैं, आप ग्रुप के पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, स्टोरी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, डिस्कशन में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और ग्रुप को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये मैटर करते हैं। तो अगर आपने मुद्दे की 3-4 बातें भी बोल दी ना, सो दैट इज गुड इनफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड। सो मुद्दे की 4 बात आपको बोलनी है, ठीक है। अभी डिस्कशन हुआ खत्म, जीटीओ सर ने बोला ओके जेंटलमैन, गुड डिस्कशन, नाउ यू कैन नॉमिनेट डिस्कस एंड नॉमिनेट समवन टू नरेट द कॉमन स्टोरी एज डिस्कस्ड बाय द ग्रुप। तो यहाँ पर देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। कई बार पीपीटी के डिस्कशन में जीटीओ सर नहीं बोलते क्योंकि आपने अगर जीडी में थोड़ी भसड़ मचाई होगी और अच्छे से डिस्कशन नहीं किया होगा, तो नहीं बोला जाएगा कि आप किसी को नॉमिनेट करें और कॉमन स्टोरी का नरेशन हो। बट एज यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, देन यू विल बी परफॉर्मिंग रियली वेल इन द डिस्कशन और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ ये पूछा ही जाएगा। अगर ना भी पूछा जाए तो ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बोला जाए कि नॉमिनेट डिस्कस कीजिए और नॉमिनेट कीजिए किसी को, अगर आपको ऑनेस्टली लगता है कि मैंने जो कॉमन स्टोरी बन रही थी उसमें अच्छा मेरा पार्टिसिपेशन था, सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन था, तो आप एक रास्ता चुन सकते हैं, दैट इज टू कीप योर माउथ शट एंड स्माइल टू एवरीवन इन द ग्रुप, उनकी आंखों में देख के, ठीक है। अभी दूसरा केस हम समझते हैं जहां पर आपने लगता है कि आपसे अच्छा कंट्रीब्यूशन किसी और ने दिया डिस्कशन में, दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज ग्रुप का तो ऑब्जेक्टिव पहुंच ही रहा है, तो आप उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। एज सुन एज बोला जाए, आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप डिस्कस करें और नॉमिनेट करें, आप बोल सकते हैं जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू नॉमिनेट चेस नंबर 5 एज ही हैव गिवन रियली लॉजिकल पॉइंट्स इन द डिस्कशन एंड ही वाज आल्सो एक्टिव। और आप और कोई भी रीज़न बता सकते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला। तो आप रीज़न के साथ जब नॉमिनेट करेंगे किसी को तो पूरा ग्रुप मान जाएगा इन मोस्ट ऑफ द टाइम, और फिर आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया अपनी तरफ से और आपने पहचाना जिसने अच्छा पार्टिसिपेट किया डिस्कशन में, दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। अभी खत्म हुआ, जीटीओ सर ने बोला ओके जेंटलमैन यू कैन स्पीक, यू कैन सिट, जिसने अपना कॉमन नरेशन दिया। उसके बाद में आपको मैं एक और बार रिपीट करना चाहूँगा कि थ्रू आउट योर डिस्कशन यू हैव टू कीप योर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अगर आप, कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स जब डिस्कशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो उनकी एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज अनरेस्ट होने लगती हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और थोड़े इरिटेटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ एक्ट करने लगते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं और उनसे उसकी आगे की परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस में, उसके स्पाइरल ऑफ नेगेटिव इमोशंस में फंस चुके हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आपका
कंटिन्यूअसली स्माइल करें, नोट करें, दूसरे को सुन रहे हैं जब अच्छे से सुने, पूरे मन से सुने, ठीक है। और जब ये आपका डिस्कशन खत्म हुआ, कॉमन स्टोरी का नरेशन खत्म हुआ, तो आप स्माइल के साथ हंसते हंसते बाहर जाएं। क्योंकि जब आप बाहर जा रहे हैं ना, तो भी मैंने कई बार नोट किया है कि एसेसर्स आर लुकिंग एट योर फेशियल एक्सप्रेशंस और सबकी बॉडी लैंग्वेज वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन कैसा फील कर रहा है। कई कई बंदे इतने पैसिमिस्टिक हो जाते हैं कि नहीं यार मैंने तो क्या ही कर दिया, वो ऐसे उतरा उतरा मुंह लेके बाहर जाते हैं। तो यार खुश होने की कोई वजह थोड़ी चाहिए, खुश तो हम कैसे भी हो सकते हैं। और हमें पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ ही बाहर निकलना है, स्माइल करते हुए। ये भी नहीं कि आप एसेसर्स की तरफ देख के फ्राउन करते हुए स्माइल कर रहे हो, नहीं, वो ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी है। बट हाँ, तुम्हें खुद को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ पूरी प्रोसेस के दौरान अपनी टेस्टिंग देनी है। देखो, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपको खुश रखेगी और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो आई एम रियली गिविंग more emphasis on this because I know the importance of this. Okay, so this was my last tip. और जब आप डिस्कशन हॉल से बाहर निकल चुके तो चिल कीजिए। अभी आपको सिर्फ एक ही काम करने की ज़रूरत है, अपना नाम और चेस्ट नंबर रिवाइज कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ रिवाइज कीजिए। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट द नोट्स अवेलेबल in the description of this video. We have provided the notes of PP and DT and also the art of story writing for TAT in the description of this video and plus those OIR questions. Chalo, thank you, Jai Hind.